Hi, Namaskar, dear students. Am I audible? If am I audible, you just give your thumbs up so we can move forward. Perfect. Okay, so I hope everybody is good in situation. So today's webinar has been organized with the three main purpose. The primary agenda of today's seminar is to give you the hint about what's the new regulations are and what's the impact is really good or bad with the respect to the Canada. Those students who are thinking to go to Canada as a student, तो क्या ये सही डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा? Okay, so before we start discussing further, I would like to get all the audience, all the students that in this webinar are comfortable with the Hindi English, or they wish to speak only in one particular language, or is a bilingual is okay. Everybody is comfortable with Hindi or not. You just have to type in the Q&A. Yes, why? Why means I can understand you are comfortable with Hindi. Okay, please. Last time like some of the students, they were feeling a difficulty to understand the language, and that's why before we start moving further, I would like to get the clarity about the audience, clarity about the students. If you are feeling comfortable with the language like Hindi, then we can conduct it in a mixed language. Okay, this, not this why, that's this why. Yes. Okay, that's perfect. Okay, done. So pretty much all the students are feeling comfortable with Hindi. Good. Done. So the first point that we are going to discuss, today's webinar has been divided in three different parts. First, we are going to focus on new rules और उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजिकली क्या प्लान कर सकते हैं. ओके, अल्टीमेटली आप अगर कनाडा एज ए स्टूडेंट्स जाने के लिए प्रिफर्ड कर रहे हो तो आपका मेन एजेंडा वही है कि फ्रॉम स्टूडेंट्स टू सिटीजनशिप और पीआर की तरफ आपकी मूवमेंट ईजी हो. ओके, तो परमानेंट रेसिडेंसी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आज का अगर ये वेबिनार आप थोड़ा अच्छे से करोगे, समझोगे, तो 90 पॉइंट्स पीआर में बढ़ जाएंगे. सुनिएगा, 99 ओके, 434 से लेके 524 तक आपकी पीआर के पॉइंट्स बढ़ सकते हैं कंफर्टेबली, थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे तो. दैट्स वाई दिस इज़ मोर वैल्यूएबल. स्ट्रेटेजिक पीआर कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है, और अभी की सिचुएशन के हिसाब से पीईबीसी क्यों ज़रूरी है और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो स्टेटिस्टिकल डेटा के बेस पर से हम समझेंगे. तो आज का जो ये वेबिनार है, दिस इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, and those students who are going to complete the webinar, it's really made significant value in your decision making process. Okay, तो start करते हैं. Like, let's we start from the first part. What is the actual new regulations and why these new regulations has been implemented in Canada. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि they are trying to stabilize it. Okay, significant number of international students are living in Canada. That means वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक chaotic situation हो गई है. जैसे घर नहीं मिल रहे हैं, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे इश्यूज़ है. तो उसने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. We are going to review it at the end of 2024, and then we are going to make some new amendment for 2025. But 2024 में ये जो amendment है उससे number of students तो कम होंगे ही. अब ये number of students कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स देश में जाएंगे. ओके, दैट मीन्स वी हैव टू लुक दिस चेंज इन ए पॉजिटिव वे, क्योंकि आने वाले समय में पीआर के लिए रिलेटिवली गुड वहाँ पे प्रॉबेबिलिटी बढ़ेगी अच्छे लोगों के लिए,
ज़्यादा पॉजिटिव एरियाज बन सकता है। ओके, तो उसका मेन एजेंडा है गवर्नमेंट का दैट्स स्टेबलाइज, और स्टेटिस्टिकली अगर नंबर्स देखो तो 3,60,000 लोगों को उसको इमिग्रेशन मतलब वीज़ा देना है अभी। ओके, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, अभी यहाँ से आपको ये पता चला कि 35% जितना रिडक्शन होगा। अब देखिए 35% लोगों को कम वीज़ा मिलेंगे, तो अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 65 लोगों को वीज़ा मिलेगा। अब ये 35 लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा मीन्स दिस आर द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो इवैल्यूएशन बेस्ड अपॉन क्वालिटी हो सकता है। दूसरा, पहले 100 बच्चे पहुंच सकते थे, अब 65 पहुंचेंगे, तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। ओके, आगे जाके पीआर के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, घर ढूंढने में भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो जो क्वालिटी है उसके लिए अच्छा डिसीजन है, जो क्वालिटी है उसके लिए अच्छा डिसीजन है। दोज हु आर ए सब स्टैंडर्ड और मिस यूजर्स है उसके लिए दिस इज़ नॉट ए गुड डिसीजन। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे इंटेंशन से जा रहे हो, तो डेफिनेटली कनाडा इज़ ए गुड एंड द चेंज इज़ पॉजिटिव इन दैट सेंस। ओके, अब दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोविंशियल केप लगाएंगे। ओके, हर एक प्रोविंस में केप लगाएंगे डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी, वो स्टेट की कितनी है, ऑन बेस्ड अपॉन दैट दे आर गोइंग टू अलॉट सर्टेन सीट्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। अभी तक ये आया नहीं है पर ये आ जाएगा अगर उसने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया, तो दे आर गोइंग टू असाइन ईच स्टेट कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहेगी। ओके, वहाँ पे मतलब वो स्टेट में कितनी सीट्स देंगे। The step of capping the international students will not impact those who are going for PhD और मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए, या तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में है एंड दोज हु वांट टू एक्सटेंड देयर स्टडी परमिट, इट डजंट अफेक्ट देम। तो ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वाले लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है। That means this new regulations is primarily focusing on the students, those who are going for the diploma studies or community college studies, उसके लिए impactful है। Okay, खास करके ये ज़्यादातर जिसको impact करेगा वो जो point है वो है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो अभी आगे बात करते हैं। ओके, अटेस्टेशन लेटर्स मतलब अभी जो स्टूडेंट्स ने जिसने फीस पेमेंट कर दिया है और जिसको वीज़ा फाइल करना है वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अटेस्टेशन लेटर तक। ओके, ये जब तक आ जाएगा मतलब अप्रूवल लेटर आने के बाद अप्लाई करना इज़ एडवाइजेबल। ओके, the students who have applied for Canada study permit application for May and September intake will need to update, जब भी आपका अटेस्टेशन लेटर आता है तो अपडेट कर देना है। मतलब the students those who have already applied for the applications and once this update is going to be, आपके अटेस्टेशन लेटर आते हैं तो उसको वेब फॉर्म से अपडेट कर देना ज़रूरी है। ओके, डन। अब ये मेन किसके लिए और ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम क्यों हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये समझिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट्स मतलब एक XYZ इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, this is the main campus. Okay, so this is the main campus. They have a satellite campus in Toronto and they are trying to recruit students in this satellite campus. So अगर किसी भी कॉलेज का सैटेलाइट कैंपस टोरंटो में प्राइवेट कॉलेजेस के साथ में है
वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगी. दैट मीन्स इट्स अ वेरी क्लियर टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट इज यू मस्ट हैव टू स्टडी in the college and the main campus only, not in the satellite campus. If you study in satellite campus in private colleges, you are not going to grant student postgraduate work permit. Okay, ये मास्टर्स वाले और शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा मिसयूज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था? स्पाउस वीज़ा में. Okay, earlier, थोड़े टाइम पहले UK also has done and take the same kind of measures for controlling the unwanted or misusers. तो स्पाउस वीज़ा में अगर आप स्पाउस वीज़ा किसी का भी अप्लाई करते हो तो मेन एप्लीकेंट शुड बी इन मास्टर्स और PhD लेवल प्रोग्राम्स, then only the open work permit will be given to the spouse. Okay, that means अगर कोई ग्रेजुएशन वाले या तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये भी बहुत कम लोग होंगे. ओके, तो स्पाउस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अदर लेवल अंडर ग्रेजुएट नो लॉन्गर एलिजिबल टू रिसीव SOWP. ओके, वो नहीं मिल सकता है उसको. ब्राइट साइड, एज आई हैव मेंशन, इफ यू आर क्वालिटी स्टूडेंट्स, definitely you have a good probability because they are not going to change the immigration उसका जितना प्लान है वही रहेगा. ओके, ओरिजिनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो प्लानिंग के साथ में है PR में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे. द गुड क्वालिटी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि कम स्टूडेंट्स होंगे, सो मोर क्वालिटी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी स्टडीड. स्मूथ रहेगी प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी. तो जितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं दे कैन गेट द फेयर काइंड ऑफ थिंग्स. आप एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप इतने पैसे भर के जा रहे हो और आपको वहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह ना मिले, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन ना मिले और आपको बहुत ही बदतर सी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं होगा आप. ओके, दैट मीन्स you have to consider this change in a positive way if you are a good quality students. Okay, still you have a great chances to get PR and great chances to get your postgraduate work permit. So this change that has been considered as a positive moves in your life. अगर हम इसको इनकैप्सुलेट कर दे whatever we have talked about, so this new regulation of 2024 is primarily focused on three things. One is the quality students are going to get the benefits. Second is those students who are going to study at the main campus are not going to be affected for getting the postgraduate work permit. And third is those students who are studying the master's or PhD or university level postgraduate programs are not going to be get any kind of negative impact with this new change. And also the students of the masters and PhD spouse get the equal benefits. Okay, and this change is considered as the positive change for all the quality students. This is the takeaway of the first section you have to keep in mind. Now the second thing is our advice. Always you have to keep in touch with us. We are going to help you out for making the right decisions. Currently, if you haven't applied yet, you have to wait for like a little while and getting all the things done, and after that we have to apply for the visa. And those who have already applied for the visa, once we get your letter from the college, we are going to update it into the immigration departments. Okay, and that's it. So it's not a big deal. Consider it in a positive way. Now, okay, dear students, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि PBC को आप जितना डिफ़िकल्ट समझते हो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है. हम प्रैक्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मेट से अभी देखेंगे. जो नेक्स्ट दो सेक्शन है
वो 2 सेक्शंस आपके साथ मुझे वॉक थ्रू करना है, अंडरस्टैंड करवाना है आपको, ओके, ताकि आप उसको एक क्लियर पिक्चर के फॉर्मेट से देख सको। ये जो अभी आपके सामने ये टेबल है, दिस टेबल, now actually we are going to discuss about the PEBC is not as difficult as you think. Most of the students are getting the myth and the wrong information about the PEBC. They think it is very, very difficult exam and it's very difficult to pass by the Indian students. But that is subjective points, and we are getting this kind of information from lots of noise from the market, and those students, those who haven't appeared for the exam, those kind of students are passing such kind of myth and the wrong information. We have to go with the statistics and data, and the statistics and data will give you the actual picture. So within, like, you can just stay with me for next 5 minutes. I can open up your mind, open up your eyes with the real statistics. This is not as difficult as you think, okay? This figure, these numbers have been taken from the PEBC website. If you are going to type the words PEBC results, okay, you will get this a table from the PEBC's website. Okay, now we start thinking in a different perspectives. First, this is a reference. That means the comparison has been done against the Canadian students. This is international students. Okay, this is the international students. So 94% of Canadian students are passing the exam with the first attempt. The second is international students, those who are writing the exam in a first attempt, about 47% students are passing the exam in a first attempt. The exact same, this number, it's like a little bit lower than this, is about 41% of the evaluating exam. That means it's a pretty much similar kind of things we can impose into the results. तो ये समझो कि कैनेडियन बच्चे 94% पास होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इंडियन बच्चे, ये इंटरनेशनल की बात है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 47% पास होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर हम इंडियन बच्चों की बात करें तो करीब करीब 25 से 30% पास होते होंगे, पर 25% पकड़ के चलो। अब ये फिगर को देखो, 90% कैनेडियन पास होते हैं और 25% इंडियंस पास होते हैं। अब यहाँ से मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रखता हूँ, आपको चूज करना है ये 4 ऑप्शंस, ओके। मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। अब फिगर तो, नंबर्स तो सही है कि भाई इंडियन 20-25% पास होते हैं और कैनेडियन 90% पास होते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं पहला कंपैरिजन आपको देता हूँ कि क्या कैनेडियन बच्चे इतने स्मार्ट है, इतने इंटेलिजेंट है कंपेयर टू इंडियन बच्चे? Canadian students are superior than the Indian students. That is the one point. Second point is Canadian education syllabus is different than Indian syllabus. Third point is the way of Canadian institutes teaching, मतलब educational institutes objective is different than the Indian Pharmacy Institute objectives. And fourth is when the professors in Canadian institutes are teaching, that's the different than the Indian professors are teaching in the classrooms. I'm not talking about the Indian professors' quality, okay? I'm just talking about the difference or the way of their objective of teaching. ये अगर हम 4 पॉइंट्स बोले तो कुछ तो है डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस है कि जिससे ये रिजल्ट में इतना बदलाव है, 90% और 25% वाला। अब ये बदलाव को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये तो हो नहीं सकता है कि हमारे इंडिया के बच्चे इतने डफर है और कनाडा के बच्चे इतने स्मार्ट है, तो ये नहीं है। दूसरा, ये हो सकता है कनाडा का सिलेबस इंडिया के सिलेबस से अलग हो सकता है। वहाँ की इंस्टीट्यूट्स का जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का, दैट इज़ डिफरेंट देन द इंडियन इंस्टीट्यूट्स, वो भी हो सकता है।
और प्रोफेसर की जो लर्निंग आउटकम एक्सपेक्टेशन है वो भी अलग हो सकती है। ये 3 चीज़ें हो सकती है जो जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। उसका मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो इस तरह से है कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंड सिलेबस आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री बेस्ड लर्निंग्स। हमारे सारे सब्जेक्ट्स इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट्स के सेंटर में है। तो अगर हम ये सेंटर बनाए और सारे सब्जेक्ट्स को इवैल्यूएट करें तो दिस सब्जेक्ट्स आर फोकसिंग मोर इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स द इंडस्ट्री, जबकि कनाडा की इंस्टीट्यूट्स आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द पेशेंट केयर। तो उसके सारे सब्जेक्ट्स पेशेंट केयर की ओरिएंटेशन में रहेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है। इसकी वजह से इंडिया का सिलेबस 21% पेशेंट केयर के ऊपर फोकस करता है, उसका 83% सिलेबस पेशेंट केयर पे फोकस करता है। अगर हम इसको करेक्ट कर दे तो एक रूम है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये 25% से लेके हमें 90 की तरफ जाना है। तो दिस इज़ द वन एरिया वी हैव टू वर्क अपॉन। दैट मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन the patient care studies instead of the industrial focus studies. Okay, so that is the one room. Second, अगर देखें तो when you are start learning in your pharmacy, majority of the time you are spending your time with the perspectives of the patients or with the perspective of the industry. Mainly we are learning with the perspective of the industry, and also we are not integrating the subjects with the patient care. हम ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को पेशेंट केयर के तरीके से नहीं देखते हैं। हम जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आइसोलेशन हो जाता है, जब फिजियोलॉजी ख़त्म हो गई तो ख़त्म। अब फिजियोलॉजी के ऊपर से हम पैथोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के ऊपर से हम फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी के ऊपर से हम उसकी फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं पढ़ते। अगर आप केयरफुली देखो ना तो इस तरह से होता है, पहले फिजियोलॉजी हुई, फिर पैथोलॉजी हुई, फिर फार्माकोलॉजी हुई और फिर फार्मेसी प्रैक्टिस हुई। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कुदरत ने इस तरह से फंक्शन दिया है, इसमें ये बदलाव हो गया तो ये पैथोलॉजी हो गई। अब ये बदलाव को हम फिर से करेक्ट कर सकते हैं जिसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो नॉन फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस से कर सकते हैं या फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस से। अब ये मैनेजमेंट में अप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज़ फार्मेसी प्रैक्टिस। तो अगर आपकी फिजियोलॉजी ही अच्छी नहीं हुई तो आपकी पैथोलॉजी भी अच्छी नहीं होगी, आपकी पैथोलॉजी अच्छी नहीं हुई तो फार्माकोलॉजी अच्छी नहीं होगी, फार्माकोलॉजी अच्छी नहीं हुई तो आप फार्मेसी प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम। और हम फिजियोलॉजी भी कौन सी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी हम फंक्शनल पढ़ते हैं। फंक्शनल फिजियोलॉजी तभी समझ आती है जब हम न्यूरो हार्मोनल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो पहला फोकस न्यूरो हार्मोनल फिजियोलॉजी होना चाहिए। अगर आपको स्टीरॉइड्स किस तरह से सेल पर काम करता है वो समझना ज़रूरी है, दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड द न्यूरो हार्मोनल फिजियोलॉजी। तब जाके आप सेल का स्टीरॉइड से फंक्शन समझ में आएगा, तब उसकी फंक्शनल फिजियोलॉजी समझ में आएगी, तब वो अबनॉर्मलिटी को समझ पाओगे। दैट इज़ द फ्रेमवर्क इज़ नॉट प्रॉपरली अलाइन इन अवर एजुकेशन। दैट इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम। अगर हम अलाइनमेंट इन एजुकेशन कर लेंगे, सिलेबस को करेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये 25 से 90% तक पहुंचने की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है, हमारे प्रोफेसर्स बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, सुनिएगा समझिएगा, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट है कि उसके दिमाग में हर बार डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, या तो रिसर्च रहता है या तो आइसोलेटेड मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में होता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वो रिसर्च पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। जब कनाडा में बच्चा पढ़ता है तब उसका पर्सपेक्टिव होता है कि मैं ये कॉन्सेप्ट को सीधी सीधी भाषा में पेशेंट के सामने कैसे रखूं, तो वो कम्युनिटी फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव से देखता है।
और हम उसको इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से देखते हैं। तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का ट्राई करते हैं और वो लोग उसको सिंपल फॉर्मेट वाली कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन को पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग में देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आइसोलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों को पता होगी, पर जब हम पूछते हैं कि भाई आपने एलेंड्रोनेट नाम की दवा का नाम सुना है क्या, एलेंड्रोनेट, तो मुझे आज तक 80% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर हमने तो नहीं सुना है ये। अब मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम लिखने बैठते हो और आपको एलेंड्रोनेट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो आप तो बोलोगे कि ये तो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस नहीं है, आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। पर अगर आप रियल लाइफ में देखो तो एलेंड्रोनेट इज़ मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब बाइफॉस्फोनेट्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अब कनाडा में 60 ईयर्स से बड़ी उम्र के 70% लोग ये दवाई लेते हैं। उसका मतलब ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब मान लीजिए कि इंडिया में ये प्रोफेसर ने कभी ये ड्रग्स को इतना प्रैक्टिकल एम्फेसाइज करके नहीं पढ़ाया। अब कनाडा में जो प्रोफेसर पढ़ाता है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस भी करता है रियल लाइफ में रिटेल फार्मेसी या तो हॉस्पिटल में, इसीलिए पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से आया है, रिसर्च पर्सपेक्टिव से आया है, और कनाडा के प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव्स ज़्यादातर कम्युनिटी या तो हॉस्पिटल फार्मेसी पर्सपेक्टिव से आया है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर, अगर हम ये तीन चीज़ों को करेक्ट कर दें तो हम 25% से 90% तक आराम से इत्मीनान से पहुंच सकते हैं। और इसीलिए फार्मा विजन हैज़ डिज़ाइन द PEBC कोर्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विथ दिस पर्सपेक्टिव्स ओनली। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले अभी जो रिजल्ट आया है, ज़्यादातर सारे बच्चे पास हो चुके हैं, हो रहे हैं, और आज 15 साल से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सिलेबस में करेक्शन किया, उसकी अलाइनमेंट सेट कर दी, ओके, पढ़ाई का जो मोड था वो इस तरह से कर दिया और मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड एजुकेशन कर दिया। तो आप PEBC के लिए अगर फार्मा विजन को ज्वाइन करते हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। 110% आपका रिजल्ट अप होगा और वेरी पॉजिटिवली यू विल पास द एग्ज़ाम। क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स को अगर आप देखोगे तो द स्टेटिस्टिक्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग एग्जाम इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। इज़ द ओनली वी हैव टू चेंज अवर अप्रोच टू द एग्जाम। इफ़ वी आर गोइंग टू चेंज द अप्रोच, डेफिनेटली वी कैन पास द एग्जाम। Okay, so that is the point only we have to adopt in our preparation. और अभी के समय के अगर संदर्भ में देखोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत एसेंशियल भी है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा बोर नहीं हो रहे हो तो मुझे आप थोड़ा सा आंसर दीजिए, एक पोल कर लेता हूँ, आपकी कुछ वैल्यू एडिशन वेडिशन हो रही है नहीं हो रही है? ओके, रेट द वेबिनार, भी करना है। ओके, आप खाली एक काम कर सकते हो, सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप Q&A में जाके 1 से लेके 5 तक नंबर लिख दो ताकि मुझे पता चले कि हाउ यू आर फीलिंग सो फार। अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर ली है। ओके, एक सब्जेक्ट PEBC उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, प्लीज़ समझिए ये। दूसरी बात कि नए रूल्स पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिवली देखो, भागने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट्स, थिंक इट इन ए पॉजिटिव वे, दिस इज़ रियली वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ। ओके, अभी जो थर्ड पॉइंट जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो रियल में आपकी होश उड़ा देगा। ओके, क्योंकि अगर आप पॉजिटिवली नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ओके, इसको यहाँ से
ओके, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम ये टॉपिक पे जो बात करेंगे, अभी 2-3 स्टूडेंट्स और रिस्पॉन्स कर दे तो अच्छा लगेगा मुझे। 1 से 5 तक नंबर ही तो लिखने हैं भाई। ओके, जो भी आपको जैसा भी वेबिनार लगा है आप नंबर लिख दीजिए ताकि आई कैन गेट लिटिल बिट फील आए मुझे कि कैसा चल रहा है, हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उसमें सिर्फ आपको टाइप ही करना होता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव गिवन द 5 आउट ऑफ 5। दैट मीन्स वी आर ऑन द कॉमन पेज, वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम थिंग्स। अभी अभी है ना, थोड़ा सा आपका फोकस यहाँ पे बनाए रखिए। Like in next 10 minutes, the whatever points that we are going to discuss about the PR point calculator that can change, that can blow your mind, and only making a little bit corrections in your decision making process can change the entire outlook of your PR possibilities. That can change this next 5-10 minutes, can change your perception about the PR in Canada. And currently majority of the students are crying that they are not getting PR. If you are applying this strategy, you are going to get PR 110%. 110% you will get the PR. Is not that difficult at all. Okay, हम अभी क्या करेंगे, ये नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम कुछ सिनेरियोज बनाते हैं, सिचुएशंस बनाते हैं। आप कनाडा की ये पीआर कैलकुलेशन की वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है और 10 मिनट में आपको खाली ये सारी चीज़ें भरना है आपके हिसाब से। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? फॉर एग्जाम्पल, never married. Second, what is your age? You have to write the 25 years is your age at the time when you are. It's visible to everybody? Okay. What is your level of education? यहाँ पे समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। एंड एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ईसीए रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। अब ये ईसीए रिपोर्ट 2 जगह से ले सकते हो। ये 5 साल की वैलिडिटी में है। अगर बी फार्मा वाले जो बच्चे हैं वो वेस से ले सकते हैं, WES से भी ले सकते हैं और PEBC से भी ले सकते हैं। मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, आज का जो ये वेबिनार आप अभी अटेंड कर रहे हो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये देखने की वैल्यू कितनी है कि आपके ऑलरेडी 15 पॉइंट बढ़ चुके हैं। 15 पॉइंट ये खाली वीडियो देखने से बढ़ गए हैं। देखो, नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करोगे? नॉर्मल सिचुएशन जब होगी तो आप जब यहाँ पे हिट करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करोगे, बैचलर को। ओके, क्योंकि आप वेस के पास से, WES के पास से आपकी डॉक्यूमेंट असेसमेंट करवाओगे तो बैचलर लिखना पड़ेगा। अगर आप PEBC की ECA रिपोर्ट लेते हो, खाली PEBC की ECA रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, आई एम नॉट टॉकिंग यू गेट योर लाइसेंस। ओके, इन दैट सिचुएशन यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज ए मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीड टू प्रैक्टिस इन लाइसेंस। तो फार्मेसी आपका प्रोफेशनल डिग्री है और उससे बेस पर लाइसेंस ले सकते हो। ECA रिपोर्ट फ्रॉम द PEBC इज द नीड, वही करना है आपको। इसीलिए पहले हम इसको हिट नहीं करते हैं। ओके, आपको किसी ने समझाया नहीं है तो आप इसको हिट करोगे, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री वाला। ओके, लेकिन ये गलत है, इसीलिए मैं आपको खाली पॉइंट्स के कैलकुलेशंस में ले जा रहा हूँ। हैव यू अर्नड कैनेडियन डिग्री? यस, कनाडा में से आप पढ़ाई किए हो। यस, क्या पढ़ाई किए हो आपने? डिप्लोमा या तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ये किया है। 1 और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट किया है, कॉलेज में ही पढ़ाई की है, फिर भी आपके पॉइंट्स हो जा रहे हैं। ओके, आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है? यस, कौन सा दिया है? IELTS। अब देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है। दिस इज 7 बैंड यू स्कोर इन स्पीकिंग, इन लिसनिंग यू स्कोर 8 बैंड इन लिसनिंग, रीडिंग 7 and writing 7.
सो 7778 777 स्कोर कैसे भी करके करना है आपको. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. आपने कोई और लैंग्वेज लिखी है, किया है, फ्रेंच नहीं किया है. इन लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा. अभी हम 1 साल का करते हैं. व्हाट इज दिस? नॉक, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन. इफ यू आर वर्किंग इन ए रिटेल फार्मेसी स्टोर एज ए असिस्टेंट, सुनिएगा, एज ए फार्मेसी असिस्टेंट अगर आप काम करते हो वो भी कैटेगरी 3 में फॉल होता है. तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ में फार्मेसी में जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी है. अगर आप पीईबीसी की डायरेक्शन में रहोगे तो फार्मेसी स्टोर में काम मिल जाएगा. और आप टेक्नीशियन नहीं, मैं तो असिस्टेंट बोल रहा हूँ, जिसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है. ओके, वो लेवल 3 कैटेगरी में है. अगर आपके पास उसका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने इंडिया में 1 साल का काम किया है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, व्हेन यू वेर स्टडिंग योर बैचलर ऑफ फार्मेसी, इफ यू हैव वर्क इन फार्मेसी स्टोर एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, समझिएगा, जब आप फार्मेसी की पढ़ाई करते थे या करते हो उसी समय पे भी आप 1 साल का काम बता सकते हो फुल टाइम. मतलब 2 साल अगर आपने किसी भी स्टोर में एज ए टेक्नीशियन पार्ट टाइम काम किया है, दैट इज कंसिडर एज ए 1 year फुल टाइम टेक्नीशियन का काम. क्योंकि आप पढ़ाई करते हो फार्मेसी की तो आप फार्मासिस्ट नहीं बता सकते हो. ओके, ये आपका गेम चेंजर है. सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स पीईबीसी आपने कर लिया है. जब आप पीईबीसी की एग्जाम्स पास कर लेते हो तो पीईबीसी फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कनाडा आपको क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन देता है. इसकी वैल्यू है 50 पॉइंट्स. तो ये यस कर देता हूँ, आपने पीईबीसी कर लिया. अब आपको एलएमए के ये कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये जो अभी आप सुन रहे हो ना मार्केट में कि मैं किसी और स्टेट में चला जाऊंगा, मैं किसी और ये प्रोविंस में चला जाऊंगा, अब इतनी भीड़ यहाँ पे है तो सारे प्रोविंस में भीड़ होगी, तो वहाँ पे भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे. तो हम अभी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं. जो हमारे हाथ में है उतना ही डिपेंड रहते हैं. ओके, सो प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं चाहिए हमें. हम अगर टोरंटो में जाते हैं तो भी हमारा पीआर की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. कोई रिलेटिव्स नहीं है कनाडा में, नो रिलेटिव्स. ओके, अभी हमने क्या किया, जो नॉर्मल था वो नॉर्मल रहने दिया. आपकी बी फार्मा की डिग्री को बैचलर बताया, 8777 पॉइंट्स किए. ओके, और दूसरी तरफ आपका 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस, 1 साल का आपका कनाडा का एक्सपीरियंस और पीबीसी पास कर लिया आपने. ये चीज़ें हमने की है. दैट इज़ कंसिडर्ड द केस नंबर 1. हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग चीज़ों की. तो कितना स्कोर होता है मेरा देखते हैं. ओके, कितना हुआ? 509. दिस इज 509 पॉइंट्स हुए आपके. 509 याद रखिएगा. ये 509 पॉइंट्स ओके, दिस इज अ पॉइंट नंबर 1. ये आपका पहला पार्ट 509 पॉइंट्स. ओके, अब उसमें हम क्या बदलाव करेंगे. अभी मान लीजिए कि हम उसमें सेकेंड लेवल पे जाते हैं. अभी खाली चेंज करते हैं, देखिएगा 509 पॉइंट्स हो गए. अभी हम खाली कहाँ जाते हैं, ऊपर जाके पहला काम करते हैं कि मैं पीईबीसी से खाली डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवाऊँ. ओके, तो ये बैचलर वाला जो पार्ट है वो चेंज होके मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीड टू प्रैक्टिस इन लाइसेंस प्रोफेशन, ये कर दिया खाली. ओके, अब जाते हैं नीचे, कैलकुलेट द स्कोर. बूम, क्या हुआ, पहले 509 थे, देखते हैं अभी क्या चेंज हुआ. 524 पॉइंट्स.
खाली डिग्री असेसमेंट चेंज किया तो 509 से 524 कितना फर्क पड़ा? 15 पॉइंट का फर्क पड़ा खाली ईसीए रिपोर्ट की एप्लीकेशन किसके पास से करवाई उससे। उसका मतलब यह है कि जैसे आप पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन कंप्लीट करते हो, जैसे ही आपका पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन पॉजिटिव आ जाता है, उसके 5 दिन के बाद आपके पोर्टल में ईसीए रिपोर्ट की एप्लीकेशंस आ जाती है। और ये ईसीए रिपोर्ट की एप्लीकेशंस जब आप अप्लाई करते हो, $100 जैसे कुछ एप्लीकेशन फीस है, वो करते हो 1 वीक में ईसीए रिपोर्ट आ जाता है, 5 साल की वैलिडिटी रहती है। अब धीरे धीरे से एक एक पॉइंट्स के ऊपर चेंज लाते हैं। अब ये 524 पॉइंट्स में से मान लीजिए कि आप पीईबीसी नहीं करते हो। सुनिएगा, एक एक पॉइंट्स के पीछे मैं डिटेल्स करता हूँ। 509 समझ में आ गया, 524 समझ में आ गया। अब केस कितना भी चेंज हो, आपको पीआर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आओ। ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन मतलब आपने पीईबीसी पास भी नहीं की ऐसा मान लो, नो, और आपने वहाँ पे एज ए फार्मेसी असिस्टेंट जॉब की और इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस और आपने पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवाई तो 512 पॉइंट होते हैं, 512 पॉइंट्स। ओके, अब खाली यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में वेस्ट करवाओगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप सिंपल वाला बैचलर डाल दो तो क्या होता है, देखो, बॉम 485 पीआर नहीं मिलेगा। अब सोचने वाली और सुनने वाली बात यह है कि पीईबीसी नहीं भी करोगे, इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस करोगे, कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस करोगे, पीईबीसी असेसमेंट से ईसीए रिपोर्ट निकालोगे तो 512 पॉइंट हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में प्लीज गलती नहीं करना है। ओके, पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन नीड टू बी डन, ईसीए रिपोर्ट शुड बी कमिंग। वही तो आपकी एडवांटेज है इंजीनियरिंग के बच्चों के कंपेयर में। ओके, क्योंकि वो नहीं करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ लाइसेंस प्रोफेशन। ओके, इसीलिए ये करो। तो ये 487 वाला चेंज होके कहां पहुंच गया, सीधा 512। तो 87 से लेके 512, 15 पॉइंट का वैल्यूएशन बढ़ रहा है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की मेथड से। ओके, अब करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया का कनाडा में एक्सपीरियंस भी हो गया, पीईबीसी नहीं है, आपने टेक्नीशियन काम कर लिया, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, इंडिया का एक्सपीरियंस 0 कर दो, कनाडा का एक्सपीरियंस रहने दो। ओके, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वाह, 474 और 512 कितना फ़र्क हुआ, 474 एंड 512, 37 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा। तो आपका इंडिया का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस 37 पॉइंट्स देता है। पीईबीसी की डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन आपको 15 पॉइंट एक्स्ट्रा देती है कुछ किए बिना, और 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस आपको 37 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देता है। अब कहाँ पीआर इतनी डिफिकल्ट हुई, 512 है तो पीआर मिलनी ही मिलनी है। पर ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर नहीं करते हो तभी ये जाके प्रॉब्लम्स होती है, और ये कोई स्पेसिफिक फार्मेसी वाले इंसान नहीं समझाते, नहीं बताते, इसीलिए हम थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। इसीलिए 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडी काउंट, और पीईबीसी के पास से डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन मैंडेटरी है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं अगर कनाडा में मास्टर्स कर लूँ तो क्या होगा, तो हम उसको भी एक बार देख के पता कर लेते हैं क्या होगा। ओके, 1 और 2 इयर्स डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कर लिया आपने यहाँ पे, उसकी जगह पे आपने मास्टर्स कर लिया कनाडा में। ओके, और इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस भी डाल दो, कैनेडियन 1 साल का एक्सपीरियंस और इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस अभी कैलकुलेट करो। तो ये जो कैलकुलेशन है वो 527 पॉइंट्स हो रहे हैं, पहले 512 होते थे,
ओके तो 512 और 527, तो यहाँ पे आपको अराउंड अबाउट करीब करीब 27, 12 में से तो 15 पॉइंट के करीब करीब का बेनिफिट्स हो रहा है। तो मास्टर्स कैन गिव यू एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स। ओके, अब मान लो कि आप पीईबीसी कर लेते हो। ओके, अब पीईबीसी कर लेते हो फॉर एग्जांपल, तो क्या फर्क पड़ता है? 539 मास्टर्स भी करो, मास्टर्स की क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंसी करो, पीईबीसी से क्वालिफाइड हो, पीईबीसी भी करो, इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस भी करो और कनाडा का एक्सपीरियंस करो। 539 पॉइंट्स, 524 हो रहे थे, 539 हो गए, 15 पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजिकली ट्राई फॉर मास्टर्स बट डोंट क्राई फॉर मास्टर्स। ओके, रोना नहीं है मास्टर्स के लिए, मिलता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो आज भी कनाडा बेस्ट है पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ पीबीसी का भ्रम तोड़ना है। पीबीसी का भ्रम टूटा तो पीआर 100% मिली, समझो। ओके, तो इस तरह से अभी आपको थोड़ा सा प्लानिंग वर्कआउट कर लेना चाहिए। और ये जो है ये मैंने एक आपके लिए एक सीट बना के रखी है, आप उसका यूज़ करोगे तो आप थोड़ा अच्छे से वर्कआउट कर सकोगे। देखो आपको क्या करना है, ये बेसिक सी चीज़ें लिख दी, फिर पहले केस में लिखो आप ये चीज़ें और फिर पॉइंट्स लिख दो 509, फिर दूसरे में लिखो, तीसरे में लिखो, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। वहाँ से आपके दिमाग में क्लियर आइडिया मिलेगा। आपको गूगल में खाली टाइप करना है कनाडा पीआर पॉइंट कैलकुलेटर्स और ये सीट की प्रिंट निकाल देनी है। ये सीट की प्रिंट निकाल दोगे, उसमें आप जो पीईबीसी की ये कैनेडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पर से है, जो कैलकुलेशंस करके फिर आप डिसीजन लो, एंड दैट डिसीजन विल ब्रोन योर माइंड अबाउट मेकिंग ए डिसीजंस। ओके, तो कहाँ थे आपके 437 पॉइंट्स, वहाँ से आप 524 और 539 पॉइंट्स, ये 100 पॉइंट से ऊपर का गोल है आपका। 102 पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता है ये इंफॉर्मेशन ओनली। ओके, सो पीआर इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, thank you very much students. I was very excited about passing this information, and today's session we have given 3 very valuable information to you. The first information was focused on the new rules that apply in 2024. Okay, those rules don't consider as a negative rules. There are lots of mess is going around. People are interpreting and people are passing the information as they understand, as they wish, whatever kind of chaos they wish to create into the market. तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। आप पॉजिटिव हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छे इंटेंशन से जाना चाहते हो तो अच्छा रूल्स है। दूसरा मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीबीसी को प्लीज़ पॉजिटिव लीजिए, वो आपके लिए पॉजिटिव है। आने वाले समय में अगर लेवल 3 निकाल दिया तो सिर्फ पीबीसी आपको बचा पाएगा। ओके, और पीबीसी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। राइट अप्रोच कैन टेक यू फ्रॉम 20% से लेके 90% तक का गोल इजीली अचीव कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है उसमें आपके कैटलिस्ट है फार्मा विजन। We are going to help you out for passing the exams. We are going to help you out with all the missing जो pieces है उसको जोड़ने में मदद करेंगे, and we can definitely take you through. और third is understand your PR journey and in mind. Okay, 7 habits of highly effective people के बारे में आपने पढ़ा होगा। And in mind is the most important habit of the successful people. They are always thinking PR is my ultimate intention, और PR लेने के लिए इतने points आज है तो मुझे इतने points को plan करके चलना है। How I can secure that point? If I can secure that point, definitely I am going to travel on that journey, and that journey can take me from this point to that point. ओके, सो ये सारे जो फिलोसॉफी है उसको अप्लाई कीजिए, एंड देन डेफिनेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ।
Thank you very much, students. And if you have any questions, doubts, you are most welcome. And you can ask the questions now.